thank everyone who have come for this event, to all the media and all the supporters. We have been wonderful audience for us from from the first movie itself. And talking about Kantara, it all started during COVID when Rishabh sir narrated a line to Vijay, and from there the journey started. It's been 5 years now. The Kantara 1 has become a bigger and better and most ambitious project for us. We're waiting to bring it to you on October 2nd. And when you say it's so I think it's all divine blessings for us and all the blessings you people are giving. All our movies are becoming successful. I think it is the love and affection you people are giving. So nothing else. Wow. It's divine blessings. Lovely, lovely. Hum wale ka bol bala hai, of course. Anand sir, this one's for you. I know you'll be like, क्यों मुझसे सवाल पूछ रहा है? But यहाँ बनता है सवाल. सवाल ये ही कि you have kind of introduced pan-Indian cinema, you know, and जिस तरह से आप उसको हम सब के लिए लेकर आए here, associating with these wonderful, wonderful people, sir, and presenting this movie, like distributing it in this part of the country. What do you have to say, sir? Good evening, everyone. I really am thankful to Rishabh. I think he's a genius of a writer, director, and actor. It's actually really very difficult to play all three roles, and he made a genius of a film with Kantara, and audiences gave it all the love. I thank Humale Films, Vijay sir, Chalve sir for making me a part of their family. I just hope that the audiences give all the love to this film the way they did for Kantara. Looking forward for the release on October 2nd. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, my next question is to Pragati ma'am. Thank you so much for being here. And मैं तो ऋषभ sir, sorry, मैं उनकी smile का बहुत बड़ा fan हूँ. आपसे भी बड़ा fan हूँ. Can't help it. Talk to us about, you know, dressing up these wonderful people. And the second part of that question is his transformation. You know, the man has transformed into something else. So talk to us about that, ma'am. Thank you. For Rishabh, cinema is everything. Life and cinema is not different for him. He's like 24/7, he'll be thinking about only cinema. Right. So, and this project is not at all easy. Him being the writer, actor, director, this journey was not at all easy. He had to put a lot of effort, and he was so much dedicated in all the work he do for the movie. This movie has taken like everything. Like he was so much drained physically, mentally, emotionally, but somehow with the blessings of all our divas and all the audience, your love, because last time when we made a small Kannada regional movie, you gave us so much support and love, made it so bigger, and like because of that, like he had to do something and give the love back to you all. So that was the motive. So he has worked so hard. Not only him, we as a team, entire team worked like day and night so selflessly. Everybody has put so much of hard work. You all could see that in our trailer or all our content. You could see the work. Kantara experience. It's an experience. It can't be explained. It can be felt, and we all are feeling the energy. Thank you so much for sharing that with us. Rukmini ji, this one's for you. Thank you so much for being here, looking gorgeous. How does it feel to be here when everybody is saying कि यार she is the next big thing in Indian cinema, pan-India sensation? ये सब सुनने को मिल रहा है. What do you have to say? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी. Thank you all for being here to celebrate Kantara with us. It's amazing. ये बात सुन के बहुत खुशी होती है, लेकिन कांतारा हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत खास फिल्म है, और मुझे तो बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे मुंबई में आप सबके साथ I'm taking these first steps with कांतारा, a film as special as कांतारा. जैसे कि सर ने कहा था, हमारी मेकिंग वीडियो में ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, हमारे लिए एक शक्ति रही है. तो या आई रियली लाइक टू से थैंक यू टू सर, इस शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मुझे बनाने का मौका दिया. थैंक यू.
And all I would say is कि वो शक्ति हम सब फील कर सकते हैं, हमें दिख रही है, वो स्क्रीन से बाहर आ रही है. And of course the man of the moment, ladies and gentlemen, Rishabh sir is responsible for that. सर देखो क्रेडिट मैं तो दे दूंगा, अभी आप ऐसा वो ह्यूमिलिटी के साथ लो मत लो. मुझे आप प्लीज ये बताइए, सबसे पहले तो वेलकम टू आमची मुंबई सर. क्या बोलना चाहेंगे? सबको इतने एक्साइटेड है सब आपसे मिलने के लिए सर यहाँ पे. Thank you so much. मुंबई इज़ वेरी स्पेशल. मुझे तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं यही मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वॉज अ ऑफिस बॉय, एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं. आज आप लोग एक सिनेमा क्या कर सकता है करके हम सोच सकते हैं कि आज आप लोग इधर तक पहुंच के ऐसा एक फिल्म करके इतना बड़ा रिकग्निशन, लव, रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग. तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं सोचा भी नहीं था उस दिन में इधर वही अंधेरी वेस्ट का जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस का जो रोड होता है ना, उधर वड़ा पाव खाते थे हम. मैं सोचा भी नहीं था इधर तक आता हूँ करके. लेकिन आई थिंक आफ्टर 17 years जो सिनेमा जो मैं दैव का रूप में, भगवान के रूप में हम देखते हैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म एज एन आर्टिस्ट, वो लेके इधर तक पहुंचा है हमको. बहुत आभारी हूँ मैं. थैंक यू सो मच. सो शुरू में मैं दैट्स इट आई थिंक. एंड कांतारा सेकेंड लॉकडाउन आई थिंक उस समय हमने मैं, प्रगति और हमारा बच्चों को लेके उधर गांव में गए थे. उस समय जो फर्स्ट लॉकडाउन था उस समय एक लॉकडाउन फिल्म किए थे. तो गांव का जो लड़के लोग बोलने शुरू कर दिए कि आई थिंक ऐसा वाला लॉकडाउन आगे कंटिन्यूस रहेगा तो अभी पूरा काम पूरा बंद होगा, बिजनेस कुछ नहीं चलेगा, आगे क्या करते हैं करके. जो एक एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में, हम एक फिल्म किए थे. सेकेंड लॉकडाउन में और एक फिल्म करके शुरू किए हम कांतारा. तो उस समय में विजय किरकिंदर को मैं उन्होंने मेरा लास्ट फिल्म था सरकारी देख के वो एक ऑफर दिए थे, कुछ फिल्म करते हैं हम साथ में, कुछ आइडिया है तो मुझे पिच करो करके. सो मैं सोचा बॉम्बार्डे फिल्म्स दे ओनली डू KGF काइंड ऑफ अ बिग बजट फिल्म्स करके एक थॉट था क्योंकि इतना बड़ा हिट था वो. उसके बाद भी मैं जो एक चिल्ड्रंस फिल्म किया था, बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला था मुझे वो फिल्म में. तो मैं बोला ऐसा मेरा जैसा फिल्म भी आप प्रोड्यूस करते हो क्या करके. हमको वो डिफरेंशिएट नहीं है, हम फिल्म बनाते हैं, अच्छा फिल्म देना चाहते हैं पूरे दुनिया को. आप कुछ भी बोलो प्रॉब्लम नहीं है, हम एग्जीक्यूट करते हैं. तो वो याद आ गया मुझे, सीधा मैं विजय सर को फ़ोन किया. सो आई थिंक 2 minutes में एक्सप्लेन किया था, दैट्स इट. 2 मिनट का कहानी में एक्सप्लेन किया था. ही सेड गो अहेड. तो आई थिंक अनदर 3-4 months में हम स्क्रिप्ट भी खत्म कर दिए. एंड वो कहानी तो पता है जो लास्ट कांतारा में पूरा वो कहानी सब लोग को बोला था मैं. लेकिन आफ्टर द रिलीज जो कन्नड़ा ऑडियंस हमको जो इतना अप्रिशिएट किया, वो लोग एक स्पार्क को इतना बड़ा वाइड फायर करके बाहर दुनिया को वो साउंड, वो आवाज़ पहुंचा दिया कि अरे हमारे इंडस्ट्री में कांतारा करके एक फिल्म आया है करके. तो वो बाहर लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला, तो ऑडियंस का रिएक्शन के बारे में सब जगह बात करनी शुरू कर दी है. उसके बाद हर स्टेट फ्रॉम कर्नाटका टू केरला, तेलुगु ऑडियंस, तमिल ऑडियंस एंड हिंदी ऑडियंस जो इधर आया तो उसका रूप भी बदल हो गया. तो मतलब सो फॉर दैट अनिल तदानी जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो जिन्होंने जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है कि सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही है उसका. सो हमारा फिल्म वो ले रहा है करके मुझे बहुत खुशी हुआ था उस दिन, जो ज़्यादा ऑडियंस को रीच होगा करके. एंड जो इसके साथ जो सेकंड पार्ट जो थॉट आया रिलीज होने के बाद, वो थॉट में मेरा को राइटर से डिस्कस किया. एंड विजय सर, चलवे सर बॉम्बार्डे में डिस्कशन किए. बहुत जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू में पूछते थे अभी आगे क्या है करके. मैं बोला उस समय
मैं आगे तो रेस्ट ले रहा हूँ, 2 महीने छुट्टी ले रहा हूँ करके, लेकिन फिल्म रिलीज होके एक के बाद एक लैंग्वेज में रिलीज हो गए। मतलब वो नॉर्मली हम फ्राइडेज करते हैं, नहीं तो थर्सडे करते हैं उधर। जो ये एक फिल्म है, मुझे भी शौक हो गया, जो सैटरडे रिलीज हो रहा है एक लैंग्वेज में, संडे रिलीज हो रहा है एक लैंग्वेज में, मंडे रिलीज हो रहा है। मुझे तो क्या हो रहा है करके समझ में नहीं आया। तो चेल्ला सर ने एक लिस्ट बना के भेज रहे थे, इधर इधर जाओ, इधर इधर प्रमोशन नहीं करते। तो क्या है कि एक फिल्म जा रहा है, उसके पीछे मुझे मेरा हाथ पकड़ के ये लेके गए सीधा, मैं सीधा गया, दैट्स इट। तो नेक्स्ट वाज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि मुझे तो आइडिया आया तो ये वाला कंटेंट रख के हम और एक पार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार हम होमबाड़े में एक अनाउंसमेंट पोस्ट डाले, एक सर्कल था, पूरे फॉरेस्ट चल रहा है, उसमें एक सर्कल का एक ये अनाउंस किए थे। एक्चुअली वो सर्कल में एक वेल था, अभी वो पोस्टर मिला तो और ढूंढो, मतलब वो एक आइडिया था वो। सो उधर से शुरू हुआ है। सो सेकंड चैप्टर का एक पोस्टर निकाला हमने, जो एक वेल के अंदर में है, बाहर ऊपर एक सर्कल है। सो ऐसा कनेक्शन है। तो पीछे जाते, आगे जाने से ज़्यादा पीछे कहानी बाकी हो गई, तो वो पीछे जाता हूँ करके मैं गया, सबको पूरे टीम को मैं नरेट किया। सो सब पूरी टीम वाले ने बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया है। सो दिस विल एंटरटेन पीपल, एंड जो मिस्ट्री उससे भी ज़्यादा होगा, ह्यूमर भी ज़्यादा होगा, तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा करके विल कोशिश करते हैं कितना कर सकते हैं करके। जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है, वो सक्सेस को हम सक्सेस जैसा नहीं लेते, विल टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी ज़्यादा काम करते, हार्डवर्क करते, एफर्ट डालते हैं करके एक सबका पूरे टीम का एक साथ में वापस गांव गए। वही 3 महीने जो प्रमोशन ये सब जो कांतारा का 100 डेज सेलिब्रेट करके हम वापस पूरे फैमिली को लेके वापस गांव गए। सो बेसिकली इट्स अ फैमिली फिल्म, क्योंकि मेरा डीओपी हो, मेरा को-राइटर्स हो, सारे टीम्स उनका सबका फैमिली पूरा लेके कुंदापुर जाके उधर सेटल हो गए थे। सो वो एक एक्सपीरियंस था उनका, जो ब्लेसिंग एंड पूरा साथ दिया मुझे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतने लोग हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिलीज होने वाली है, जो लास्ट मोमेंट का जो कंटेंट पहुंचाना, ऐसा सब बहुत सारे काम होता है। सब लोग उधर, आई थिंक मोर देन 3 months दे हैव नॉट स्लेप्ट। तो मेरा भी ज़्यादा, आई थिंक 2-3 घंटे ज़्यादा सोया कल रात एक्चुअली। तो उतना काम कर रहा है। सो मेरे बारे में बोला तो मुझे वो आता है कि हज़ारों लोग का एक बहुत बड़ा सैन्य बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, मेरे पीछे मेरे साथ में है। उन लोगों के वजह से हम ये अचीव किए शायद। आई होप इट विल एंटरटेन यू। एंड होमबाड़े इतना बड़ा प्रोडक्शन होके, आई थिंक कांतारा जैसा फिल्म करने के लिए वी नीड अ राइट प्रोड्यूसर। ऐसा ही कुछ पैसे डालने वाले प्रोड्यूसर मिला तो बस नहीं है, दे शुड बिलीव इन दिस, क्योंकि ये इट्स नॉट जस्ट अ सिनेमा फॉर मी और फॉर आवर टीम। जो हम भारतीय संस्कृति को, हमारा रूटेड कहानी को, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये इसके ऊपर एक बिलीफ रख के आना चाहिए। एंड जो उन्होंने जो किया है, जो साथ दिया है, एंड अभी चलवे सर इधर है, लेकिन विजय सर उधर कंटेंट पे है हमारे साथ। ये लोग सब लोग हमारे साथ सो नहीं रहे हैं, मतलब हमारे साथ में है, मतलब वो एक एनर्जी आता है ना, सब लोग है हमारे पास, जो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ऐसा एक प्रोडक्शन हाउस। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड मेरा डीओपी आज नहीं है इधर, ही इज़ माई बिगेस्ट फ्रेंड। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विजुअल्स देखा है, ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डीओपी इन इंडियन सिनेमा। उतना एक पोटेंशियल है उसका, जो फ्रेम्स होगा, जो पूरे फिल्म देखने के बाद आप देख सकते हो उसका काम। सो एंड प्रगति एज अ डिज़ाइनर, उनका एक बहुत अच्छा एक मौका था वो, मतलब एज अ डिज़ाइनर जो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा वाइफ है इसलिए डिज़ाइनर, ऐसा नहीं है। मुझे वो 3 तरीके का एक ये था, ये ट्राइबल हो, मतलब आप ट्रेलर में देखा है, जो ट्राइब्स हो, नहीं तो किंग्स एंड क्वीन, एक पोर्ट का भी ये आएगा। दैट इज 3 डिफरेंट मतलब
कॉस्ट्यूम लुक एंड फील आना चाहिए था. एंड स्टोरी सेट इन 4th 5th सेंचुरी, सो वी डिडंट हैव एनी रेफरेंसेस अंटिल अनलेस हमको कुछ पेंटिंग का रेफरेंस है, नो बुक में कुछ चीज़ मिलता है. तो हमारा जो रिसर्च टीम में बहुत सारे प्रोफेसर्स इसके बारे में जो PhD किया हुआ एंड दैव नर्तक का जो लोग हैं, जो कमेटी लोग हैं, वो सबको मिलके हम पूरा डॉक्यूमेंट किए थे. तो वही रेफरेंस था, वो रेफरेंस रख के सब पूरे काम किए लोगों ने. तो आई थिंक हर कैरेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड एज अ वाइफ आई थिंक बहुत एक बड़ा सपोर्ट था मुझे, क्योंकि हर दिन मैं शूटिंग पर निकल जाता था मैं घर से. वो प्रे करने शुरू कर देते, इतना रिस्क का सीक्वेंस है, एक्शन का सीक्वेंस हो, तो वो था. एंड हमारे बच्चे इस पूरे फिल्म में ही बड़े होते आए आगे. तो मेरा बेटा तो ही वॉज लाइक 10 महीने का था हम लोग शुरू किए. तो अभी स्कूल जाने के लिए शुरू किए, वो बेटी भी स्कूल जाने शुरू किए. वो सब संभाल के इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करके मेरे साथ लेके पूरे. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड पूरे आर्टिस्ट रुक्मिणी हो, गुलशन, जयराम सर एंड नए नए कलाकार बहुत लोग काम किए, बहुत अच्छा किए. सो बहुत टफ लोकेशंस था. सो वो पूरा मन में रख के वो एफर्ट डाल के जो साथ किए, थैंक यू. तो सबका रिप्रेजेंटेटिव जैसा आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ. एंड गुलशन इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट परफॉर्मर. उनको मैं सब लोग देख के सोचा है कि बॉलीवुड से बंदा को लेके आया करके. एक्चुअली वो इज फ्रॉम कर्नाटका, लेकिन उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला है, बहुत अच्छा काम किया है. तो मैं इससे पहले ही 3-4 साल पहले मैं उनके साथ काम करने का जो प्लान था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हुआ. लेकिन बाद में इसमें जो वो काम किया, आई थिंक यू वांट टू एंजॉय दिस परफॉर्मेंस. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका एक पॉजिटिविटी एंड परफॉर्मेंस. तो वो आज नहीं है, कुछ रीज़न की वजह से उधरी है वो. तो सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, माय टीम एंड आपको हर बार हमारा काम को अप्रिशिएट करके, स्पेशली लास्ट टाइम जो 3 साल तक आपका मन में है कांतारा, अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड अभी ये कांतारा लेके आके आपको टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग. इसमें भी आपका वही आशीर्वाद पूछ रहे हैं हम, तो ब्लेसिंग पूछ रहे हैं. थैंक यू सो मच. अगर मैं किसी को भूल गए तो सॉरी, मेरा टीम को किसी को भी. Since last 5 years I'm working with him. Like we have shot almost 250 days. We both were in set only, and mostly we discuss about movie all the time. And he's a good husband and father. I have to see after the movie once he come back home. Last time also he has promised me few interviews that okay, I'll come back home and give personal time to you guys. But it didn't happen because after the release he was so excited, he wanted to do this Kantara chapter 1. So again he went for research and all of that, he was working on it. And I couldn't ask for his time and all. Now I think he'll give after this movie, then I have to see. प्यार में शिकायत करती हूँ भर के. देखो बाकी तो बात तो ये है. थैंक यू सो मच मैम. रुक्मिणी जी, आप मेरे को बताइए, वी सॉ दिस सीन, वो अभी भी सबकी जहन में एकदम ताज़ा है, जहाँ पे स्वॉर्ड फाइट कुछ कर रहे हैं, आप दोनों फ्रेम में हैं. टॉक टू अस अबाउट इट. लाइक कितना चैलेंजिंग था और कितना मजा आया उसे करने में व्हेन यू सॉ द फाइनल थिंग. सही था, आपने चैलेंज से ज़्यादा मज़ेदारी था. वैसे हमारे करियर में मतलब शुरुआत में ऐसा मौका मिला है जहाँ पे मुझे ढेर सारी स्किल्स एक्वायर करने का एक्सपेक्टेशन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी भी दी थी मुझे. तो मज़ा आ गया. वी हैड सम अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स हु वर देयर टू हेल्प अस एंड ट्रेन अस विद दिस काइंड ऑफ थिंग. वी नीड टू वर्क ऑन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ इट. देयर हैज टू बी सर्टेन स्वाव स्टाइल टू इट एज वेल. तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. I had a great time learning and then executing it. What kind of brief were you given, by your director, writer? क्या बताया था ये कैसा कैरेक्टर होने वाला है? Because of course हम जो कैरेक्टर है वो देख रहे हैं, but what were you told about it कि ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? इसने कहा था कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है और काफ़ी लेयर्स है इसके. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज बात करते करते शायद पूरा कहानी बता दूँ सर.
But I was told that there would be a great deal of layers, which as an actor is always fun to explore. And shoot karte samay bhi, there was a lot of involvement. So it was also there. So we were constantly deciding how much of this character or how much of this moment we should sort of expand on, how to develop it as we go along. So yeah, I think that's how we sort of engineered it. Thank you so much. Chalve sir, this one's for you. Please tell us, we talk about unconventional content. Bombali Films stands for that. But here, where do you see Kantara in the entire filmography of yours? And of course, you do a KGF, you do a KGF series, of course, you do a Salar, you do Mahavatar Narsimha, and you do Kantara. Where do you see it, and what is it that it appeals to everyone? It's like not just Indian, globally it has got so much love and recognition. What do you have to say on that? The story, the reality story, the folklore and all, it's a way, it connects to everybody. So it's a story from the coastal Karnataka, but same ritual is followed in some other formats in other parts of the world. So you go anywhere, like in Karnataka in a different format it's followed. Or you go outside Karnataka it's followed. And if you go outside, like Rishabh was telling, in USA, someone was referring, the similar ritual is followed in a different way. So finally, first of all, we are all tribes. We have evolved over a time. So it's a story of the ancestors, which we have to tell to our next generation. So our main vision as a Umbada Films, we always wanted to tell stories of the country, our mythology, so folklore. So that's our intention. That's how we did Mahavatar Narsimha. Like we wanted to tell our stories to the next generation. So we want to keep that momentum. Otherwise,